Hi students, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Ocean of Knowledge. Today we are going to study about adjective. Okay, it is very important topic in English language. Okay, so first of all we are going to discuss about adjective meaning. Okay, what is meaning of adjective, what is use of adjective, and how many kinds of adjective. First of all we are going to talk about the meaning of adjective. The meaning of adjective is visheshan. The meaning of adjective is visheshan, and the definition of adjective is: an adjective is a word which is used to qualify noun or pronoun. It means adjective is an qualifying word. Adjective is an qualifying word and it qualifies noun or pronoun in a sentence. Adjective is a word which describes about noun or pronoun, which tell something about noun or pronoun, just like his shape, size, okay, color of noun or pronoun, okay, and quality. तो एडजेक्टिव उन शब्दों को कहा जाता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव उन शब्दों को कहा जाता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं किसी सेंटेंस में, ठीक है ना। किसी सेंटेंस में जब एडजेक्टिव यूज किया जाता है तो यह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उसके रूप रंग को बताएंगे, उसके गुण और दोष को बताते हैं, उनकी संख्या को बताते हैं, परिमाण को बताते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों का डिस्कशन हम करते हैं एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव के रूप में इन सब का प्रयोग किया जाता है, ध्यान देंगे। और विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला, यानी कि वह शब्द जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, के प्राणी के बारे में विशेषता बताए, उसके बारे में डिस्क्राइब करे, कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताएं, वह क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ पे डिफिनीशन यदि देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा एन एडजेक्टिव इज a word used to qualify a noun or pronoun. Okay, here is the definition of adjective. Here is the definition of adjective, and now we are going to write here some example of adjective. Okay, ऐसे a beautiful girl, a beautiful girl. Here the word beautiful is an adjective word because it describes about noun, and here noun, the girl is noun here, the girl word is a noun here, okay, and beautiful word is adjective, okay, and it describes about girls, the girl's color, the girl's quality. The girl is beautiful, okay, so this is the quality of girl, okay. And the other example, second example, and
old man and old man. Here man is noun, but old word is adjective. Old word is adjective. Okay. Here man word is noun, but old word is an adjective word. Okay, and it describe about man's. It describe about man's. Okay, मैंस का एज बताता है. मैन कैसा है? मैन का ये क्या है? अवस्था है. एक अवस्था होता है, ठीक है ना, स्टेज है, अवस्था है. तो ये मैन का अवस्था क्या है कि मैन बूढ़ा है, पुराना है, व्यक्ति है, ठीक है, वो आदमी क्या है? बूढ़ा हो चुका है. ऐसे ही और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. ही हैज ए बिग हाउस. ही हैज a big house. He has a big house. Here the word big is an adjective word. Here the word big is an adjective word, and the house is noun word. Okay, here house is noun word, the word of noun, and big word is the word of adjective. Okay, and it describe about it qualifying about house. Okay, it tell us something extra facts, something about house. हाउस का शेप कैसा है, ठीक है ना, तो हाउस बड़ा है, ठीक है. तो यहाँ पे ये बिग जो वर्ड है ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है. इसके बाद देखेंगे यूज ऑफ एडजेक्टिव. तो यूज ऑफ एडजेक्टिव, यूज ऑफ एडजेक्टिव, यूज ऑफ एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव का यूज, ठीक है, एडजेक्टिव का यूज दो है, ठीक है ना. देयर आर टू यूजेज ऑफ एडजेक्टिव. देयर आर टू यूजेज ऑफ एडजेक्टिव. यहां पे लिख लेते हैं देयर आर टू यूजेज ऑफ एडजेक्टिव. देयर आर टू यूजेज ऑफ एडजेक्टिव. पहला जो है वह एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. एंड दूसरा है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव. प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव. ओके, तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना. यूज ऑफ एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है एडजेक्टिव का, ठीक है. तो जिन सेंटेंस में, ठीक है ना, जिन सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज किसी नाउन से पहले होता है, ठीक है ना, जिन वाक्यों में किसी भी एडजेक्टिव वर्ड का यूज किसी नाउन से पहले होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं, ठीक है ना, एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं. जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लेकर के और इसको देख लेते हैं. यहाँ पे he has a red pen. He has a red pen. उसके पास एक लाल पेन है, रेड पेन, ठीक है ना. तो रेड वर्ड यहाँ पे नाउन से पहले आया है. यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये नाउन से पहले रेड वर्ड आया है, ठीक है ना. यहाँ पे ये एडजेक्टिव है
और ये एट्रीब्यूटिव यूज है, ठीक है ना। एडजेक्टिव का वर्ड है लेकिन एट्रीब्यूटिव यूज है क्योंकि ये नाउन से पहले यूज किया गया है, ठीक है ना। तो जब नाउन से पहले कोई वर्ड यूज किया जाएगा तो वो एट्रीब्यूटिव यूज कहलाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही वॉज एन इंटेलिजेंट मैन, ही वॉज एन इंटेलिजेंट मैन, He was an intelligent man. यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं he was an intelligent man, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट वर्ड जो है ये नाउन से पहले आया है। यहाँ पे मैन जो है वो नाउन है और इंटेलिजेंट जो वर्ड आया है ये नाउन से पहले आया है। यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे एडजेक्टिव यहाँ पे है, ठीक है। तो ये नाउन से पहले आया है तो एट्रीब्यूटिव यूज कहलाएगा, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा जो बताए हैं अभी प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव यूज देखेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं प्रेडिकेटिव यूज। दूसरा यूज है प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव यूज जब सेंटेंस में किसी भी एडजेक्टिव का यूज किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले ना किया गया हो, ठीक है ना। जब किसी सेंटेंस में किसी एडजेक्टिव का यूज नाउन या प्रोनाउन से पहले न हो करके सेंटेंस के प्रेडिकेटिव पार्ट में हो, सेंटेंस के प्रेडिकेटिव पार्ट में यदि होगा तो उसे हम प्रेडिकेटिव यूज कहेंगे। यहाँ पे सेंटेंस एक लिख रहे हैं माई हाउस इज बिग। इस सेंटेंस देखेंगे माई हाउस इज बिग, तो बिग वर्ड के पहले वर्ड के बाद कोई भी यहाँ पे नाउन नहीं है और बिग जो वर्ड है यह एडजेक्टिव है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये एडजेक्टिव वर्ड है और इसके पहले कोई भी नाउन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये प्रेडिकेटिव पार्ट में इसका यूज किया गया ना, क्योंकि इसके ये वाला जो पार्ट होगा वो प्रेडिकेटिव पार्ट होगा, ठीक है। इस तरह से अगला सेंटेंस यदि लेते हैं रोज इज रेड। तो रोज यहाँ पे वर्ड जो आया है, रेड जो वर्ड आया है यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव तो होगा लेकिन प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना। यहाँ पे रेड जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है और कौन सा एडजेक्टिव है? तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये प्रेडिकेट पार्ट में आया है, ठीक है ना। सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट में आया है इसलिए इसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के कितने काइंड्स होते हैं इसके बारे में अब बात करेंगे, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव? देयर आर 7 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव और देयर आर 7 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ओके, तो 7 काइंड्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पे स्टडी करेंगे। पहला जो काइंड्स है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ओके, दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ adjective, and second is adjective of quantity, adjective of quantity. Second is adjective of quantity. Third is adjective of number. And fourth is proper adjective. Okay, and sixth is demonstrative adjective. And 5 है ये, okay, 5 is demonstrative adjective and 6th type of adjective is interrogative adjective. 6th type of adjective is interrogative adjective and the 7th type of adjective is distributive adjective. The 7 kinds of adjective is distributive adjective.
So you can see here at the whiteboard the type of adjective, and now we are going to explain one by one. Okay, so first of all we are going to study about, I am going to teach you about adjective of quality. Adjective of quality. Okay, adjective of quality. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज का डिफिनीशन सबसे पहले जानेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऐसे एडजेक्टिव को कहते हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए, उनके गुण दोष को बताए, उनके रूप रंग को बताए। नाउन और प्रोनाउन कैसा है, उसका गुण क्या है, उसका दोष क्या है, उसका रूप रंग क्या है, इन सब के बारे में डिस्क्राइब करता है कौन? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से ये बातें समझ में आई होगी। ठीक है ना। किसी भी एडजेक्टिव में, किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव जब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उनके रूप रंग को बताता है, उनके गुण दोष को बताता है, तो उस कंडीशन में वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे गुड बॉयज, गुड बॉयज, गुड बॉयज ओबे देयर एल्डर्स, ओबे देयर एल्डर्स। ओके, here the good word, here the good word is adjective, and adjective of, it is the adjective of quality. It describes about boys, good boys। ठीक है, तो यहाँ पे good जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, ध्यान देंगे। ठीक है, और कौन सा एडजेक्टिव है? तो क्वालिटी एडजेक्टिव है। ठीक है ना, क्वालिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ठीक है ना। इसके बाद रोज इज ए ब्यूटीफुल, रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर। ओके, हियर द ब्यूटीफुल वर्ड इज adjective of quality because it tell us, it describe about flowers quality, the quality of rose flowers, the color of rose flowers. Okay, so it is called adjective of quality. And the third example you can see here, she is gentle, she is gentle, she is gentle। ठीक है, she is gentle या he is gentleman। ठीक है, he is gentleman, he is honest man, he is an honest man। ओके, तो इस तरह के सेंटेंस जो आएंगे ये क्वालिटी बताएंगे। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा जो टाइप होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स होता है मात्रा, क्वांटिटी मीन्स क्या होता है? मीनिंग बच्चों मात्रा, यानी कि ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की मात्रा को बताए। ठीक है ना, तो वो एडजेक्टिव आप क्या कहलाएगा? क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है ना। यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में एडजेक्टिव जो होता है वह नाउन या प्रोनाउन की मात्रा को बताता है। ध्यान देंगे, नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है? उसकी मात्रा को बताता है। he ate some rice, sorry, he ate some rice। यहाँ पे some वर्ड जो है एडजेक्टिव है,
क्योंकि ये क्या कर रहा है, राइस की क्वांटिटी को बता रहा है। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है क्योंकि राइस की क्वांटिटी को बता रहा है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल हो गया क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव का। दूसरा लेंगे, आई हैव एनफ मनी। आई हैव एनफ मनी, मेरे पास बहुत सारा धन है, मेरे पास पर्याप्त धन है, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं। तो यहाँ पे वर्ड जो आया है पर्याप्त, ठीक है ना, ये मनी का क्वांटिटी बता रहा है, जो मनी का क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है ना, कि मनी कितने मात्रा में है हमारे पास, ज्यादा मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिव मी मोर मिल्क। ऐसे तीसरा सेंटेंस में, गिव मी मोर मिल्क, मोर मिल्क, मुझे अधिक दूध दीजिए, मुझे अधिक दूध दीजिए। तो यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। सभी एडजेक्टिव है लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा क्योंकि मोर मिल्क लिखा है, यानी कि दूध की मात्रा को बता रहा है कि मुझे अधिक दूध चाहिए, ठीक है ना, मुझे अधिक दूध दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपने एडजेक्टिव के बारे में अध्ययन किया और इसके जो और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव जो है, जो अभी शेष रह गए, जिनके विषय में अभी डिटेल में नहीं स्टडी करा पाया हूँ, ठीक है ना, नहीं पढ़ा पाया हूँ, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा, जो कि इस वीडियो का सेकेंड पार्ट होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।